A very good morning to all the students of 6th standard. How are you all? I just hope that you people are fine and healthy at home. So today we are going to do the summary of Unit 1 Section 1 through a colored class. So basically this is a story about R.K. Lakshman. He is talking about his childhood, and we will also read about his brother R.K. Narayan. And moreover, the story is mainly about that how R.K. Lakshman had become a celebrated cartoonist and illustrator. Cartoonist, you all know, and illustrator means a person who draws pictures for magazines, books, or advertising. Okay, drawing pictures or posters. So he has become a cartoonist also and an illustrator also. So here he is talking about his old house, which is in Mysore. So there was a window, and it was the part of the window was there were many different parts of that window, and each part had a different color. Means the window pane, the glass pane is known as window. The glass pane was divided into different parts with each having a different color. But one day what happened that the window broke. So what happens when some glass pane breaks? छोटे छोटे कांच के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं. वैसे ही यहाँ पे भी हुआ. बिट्स ऑफ कलर्ड ग्लास टिंकल डाउन. छोटे छोटे कलर्ड ग्लासेस के जो टुकड़े थे वो नीचे गिर गए. I ran to pick up those pieces. I looked at every color, one after another. Suddenly I happened to see through the glass. तो मैंने उन पीसेस को जाके देखा, and I have looked at each and every color. So छोटे छोटे, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर राइट. सो छोटे छोटे टुकड़े थे, और जब मैंने उसको उठा के देखा बाहर अपनी सराउंडिंग्स में, तो मैंने देखा कि द वर्ल्ड इज़ एंटायरली अ डिफरेंट प्लेस. ओके, जब मैंने ब्लू कलर में से देखा तो मुझे बाहर कुछ और नज़र आया. जब मैंने ग्रीन कलर में से देखा तो मुझे कुछ और नज़र आया. और जब मैंने रेड कलर में से देखा तो मैं बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल when he saw through the blue color, so everything looked to him in blue. Okay, so he saw that gardener, he is a blue gardener. He was digging the blue earth, and there was a cow also. Its color was also blue, and the cow was swishing its blue tail. Okay, and the sun was also blue in the sky. So everything was spooky. Spooky means that everything was very different, very strange, and it scared to the author, right? वो डर गया. So he was not able to bear it. वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. And then after the blue piece he picked up the green glass, and through the green glass he saw that everything is beautiful again, and he can see the gardener. He was shoveling away. Okay, shoveling away means when we are moving the earth. Earth means your soil with a shovel. Shovel is a tool you can see in the hand of the farmer. Okay, so everything was fine, everything was cheerful, even the cow was very friendly. Okay, so he was having a good response with the green color. After that he tried out the red color, and he was very much frightened. Why? Because through the red color he saw that the cow was ready to attack him. मतलब उसको ऐसा लगा कि रेड कलर में से काऊ मुझे आके मारेगी, अटैक करेगी. द डॉग बेयर्ड इट्स टीथ. जो डॉग है उसने अपने दांत ऐसे दिखाए जैसे वो मुझे अभी बाइट करेगा. एंड द गार्डनर वॉज डिगिंग अप अ स्केलेटन. एक्चुअल में गार्डनर क्या कर रहा है? वो तो शॉवलिंग कर रहा है ना, लेकिन वहाँ पे क्या नज़र आ रहा था कि जैसे वो कोई स्केलेटन डिग कर रहा हो. सबको पता है स्केलेटन क्या होता है. एंड जो क्लाउड्स थे वो उसको रेड कलर के नज़र आए, जैसे कोई ब्लडी स्काई में होता है, फुल ऑफ ब्लड. सो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉर चल रही है. सो ही वॉज स्वेटिंग, मतलब वो घबरा गया, वो कांप रहा था. लाइक एक वॉर हो रही थी. सो ही वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, वेरी मच स्कैर्ड. सो फटाफट से उसने क्या किया, ही स्विच्ड बैक टू ग्रीन. उसने ग्रीन कलर का दोबारा कांच का जो पीस था उसको उठा लिया. एंड देन ही फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज फॉर हिम इट वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज चीयरफुल अगेन. सब कुछ शांत हो गया, उसको कुछ भी डर नहीं लग रहा था अब. एंड फॉर हिम इट वॉज अ वेरी कूल डे, वेरी प्लेजेंट डे इन द गार्डन. और
जो हवा चल रही थी वो बहुत अच्छी हवा चल रही थी. His parents were not at home and he was free to play the whole evening. So he was enjoying his day very much. Okay? Just a second. So after that, so this was the first time that he had a very different kind of experience with his surroundings. उसको बहुत अच्छा लग रहा था जो कांच के टुकड़े थे उसमें से देखना, बिकॉज एवरी कलर वॉज अ वेरी डिफरेंट कलर. तो उसको इस चीज़ से ये फील हुआ कि मुझे विजुअल थिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है. विजुअल थिंग्स मतलब लाइक जिसको हम देख सकते हैं. ओके तो उसको ये लगा कि मैं इन चीज़ों को देख के ड्रॉ कर सकता हूँ, पेंट कर सकता हूँ और ये मेरी लाइफ बन सकती है. When did I start drawing? वो कहते हैं मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट कब किया. मे बी वो अपने आप से बात कर रहा था कि मे बी शायद मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैंने जब मैं 3 years का था तभी मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया. सबसे पहले उसने कहाँ ड्रॉ किया. ही स्टार्टेड ऑन द वॉल लाइक एनी नॉर्मल चाइल्ड. पेरेंट्स वर मोर टॉलरेंट इन दोज डेज. नो वन स्टॉप माई स्क्रिबिंग ऑन द वॉल. I drew with bits of burnt wood that I got from the hot water stove in the backyard. What did I draw? Oh, the usual things. Trees, houses, the sun behind the hill. तो वो कहता कि जैसे हर बच्चा वॉल पे लिखता है, सबसे पहले मैंने भी वैसे ही लिखा, लेकिन मैंने किससे लिखा, मैंने कोल से लिखा. बर्न्ट वुड मीन्स कोल या कोई भी वुड जो जली हुई होती है, बिकॉज वी आर एबल टू राइट विद दैट. और उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, ठीक है, वो उसको मना नहीं करते थे, ज़्यादा रोकते नहीं थे. एंड वॉट ही यूज़ टू ड्रॉ ट्रीज, हाउसेज and the sun behind the hill. Okay, so basically he was not a very good student in his studies, but one time the teacher she had given him a pat on his back. Pat means शाबाशी दी. तो क्यों दी? Because every student in the class was asked to draw leaf. सबको बोला गया कि एक लीफ ड्रॉ करो, ठीक है. तो बच्चों को समझ में ना आए कि हम क्या ड्रॉ करें, सब कंफ्यूज हो गए. एक ने बनाना लीफ ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरे ने इतना छोटा डॉट ड्रॉ किया कि वो नज़र भी नहीं आ रहा था. दैट इज़ नोन एज स्पेक, ठीक है. सम जस्ट मैनेज ब्लॉब्स मीन्स कुछ भी बना रहे थे, बट वो लीफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. बट व्हेन द टीचर केम टू हिज सीट, देन शी सॉ दैट ही हैज़ ड्रॉन वेरी ब्यूटिफुल लीफ ऑन द स्लेट. एंड शी आस्क्ड हिम दैट ओके डिड यू ड्रॉ दिस बाय योरसेल्फ. तो वो डर गया क्योंकि ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट. उसको लगा उसको मार ही पड़ेगी या उसको डांट पड़ेगी. सो ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा चुप हो गया. हैड आई डन रॉन्ग, वो अपने मन में बोले क्या मैंने कुछ गलत किया. आई नॉटेड डबली. नॉटेड मतलब मैंने हाँ कहा दिया, हाँ तो बोल दिया, मतलब मैंने अपना सिर नीचे की तरफ किया, मैंने कहा कि येस, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था. सो अपॉन हियरिंग दिस द टीचर स्माइल्ड बिकॉज द टीचर सेड दैट this boy has done a very good job. Can you see the leaf, that how beautiful he has drawn? No mistake is there. So why he was able to draw this leaf, he was able to draw because he was a very keen observer. Keen observer means a person who sees each and everything, who is very good at noticing things. मतलब कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो बहुत डिटेल में देखते हैं, मतलब इतनी बारीकी से देखते हैं कि हमें सारी उसकी छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो भी हमें याद रहती हैं. सो ये जो ऑथर था वो ऐसा ही था. इस करके आपको पता है उसने ये लीफ कहाँ देखा था. एवरी डे व्हेन ही यूज्ड टू कम टू स्कूल, सो देयर वाज अ पीपल ट्री इन हिज वे. सो ही यूज्ड टू सी द लीफ ऑन दैट पीपल ट्री. और देखो उसने वहाँ पे देखा है और वो क्लास में आके उसने सेम टू सेम वैसा ही लीफ बना दिया. बिकॉज ही इज़ अ कीन ऑब्जर्वर, ही हैज़ अ कीन आई, क्योंकि वो बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखता था. सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी. एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि आजकल के जो लोग हैं वो हर चीज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कि जैसे कि सपोज़ करो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या है, बट हमें एग्जैक्टली अगर डिटेल्स पूछी जाए तो हमें नहीं पता होंगी. लेकिन वो कहता है कि मुझे गिफ्ट मिला है, मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता हूँ और उसको याद रख सकता हूँ. और क्योंकि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और एक इलस्ट्रेटर हूँ, तो इन दो प्रोफेशंस में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट इग्नोर दिस मेन क्वालिटी. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर इज़ देयर. इट्स ऑफ Mysore. So this author, he was attracted to one bird. Which bird was it? It is a crow. It is a crow. Why he was so much attracted to crow? Because he feels that the crow is very alive
and crows are not shy. Crow, they don't try to hide themselves. The crow is very clever. They can look after themselves very well. तो उनको लगता है क्रो अपने आप को बहुत अच्छा अपना ध्यान रख सकते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं और ये बहुत अलाइव होते हैं, मतलब जिंदा दिल होते हैं। ये अपने आप को, ये चुप नहीं रहते हैं, सारा दिन बोलते रहते हैं और छुपते नहीं हैं, सारा दिन उन्होंने बोलते रहना है। तो जो ये ऑथर था, इसको ये इसके घर में भी जहाँ पे ट्रीज थे वहाँ पे इसको क्रोज बहुत नज़र आते थे और वो हमेशा बोलते रहते थे कुछ ना कुछ। सो ही वॉज हैविंग अ फैसिनेशन फॉर द क्रो। तो उसने अपनी पेंटिंग्स में भी बहुत सारे क्रोज को ड्रॉ किया है, कभी सिंगल क्रो, कभी ग्रुप में, ठीक है, एंड इन मैनी मोड्स। सो इसकी इतनी पेंटिंग्स हिट हुई हैं कि एक पेंटिंग तो उसकी आइसलैंड में भी गई हुई है। समबडी हैज़ बॉट द पेंटिंग, somebody has purchased his painting and it's in Iceland now. So he was about 9 or 10 जब उसे डिसाइड किया कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। He used to cycle for 10 miles around his home ताकि उसको इतनी इंटरेस्टिंग जगह मिले जिसको देख के वो पेंट कर सके। और उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल जगह थी मैसूर, विच इज़ इन साउथ इंडिया। वहाँ पे ट्रीज़, स्ट्रीम्स, हिल्स, ओल्ड रूइन सब कुछ है और वो उसके लिए बहुत अच्छी अट्रैक्शन थी जिसको देख के वो ड्रॉ करता था। इवन जो फॉरेन मैगजीन्स में इलस्ट्रेशंस आती थी, जो भी कुछ ड्रॉ किया हुआ आता था वो भी ड्रॉ करता था और उससे उसने बहुत कुछ सीखा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसे कार्टून्स लगती थी। सो ही बिगेन टू ड्रॉ कार्टून्स एंड देन जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लुधियाना टाइम्स है, तो उन्होंने उसको अप्रोच किया और वो इंटरेस्टेड थे कि जो भी कार्टून्स आप बना रहे हो हम उसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे। और शायद उसने अच्छा काम किया था क्योंकि न्यूज़पेपर वालों ने उसको ये भी बोला कि आप हमारे लिए पोस्टर्स भी ड्रॉ करो, ठीक है। किस चीज़ के लिए? डिफेंस प्रोग्राम, डिफेंस लाइक फॉर आर्मी एंड फॉर अडल्ट एजुकेशन। तो जितना ही जो चीज़ वो बनाता वो पब्लिश हो रही थी न्यूज़पेपर में, तो उसको उस चीज़ के पैसे मिल रहे थे। सो ही यूज्ड टू अर्न मनी विच इज़ नोन एज पॉकेट मनी फॉर हिम। सो ही नेवर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ओके, सो इस तरह से ही वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फाइनेंशियली। Then this is the last page. We have not done reading in the class, but I'm going to explain it today, okay? When Narayan's stories began to get published in the Hindu, Madras, he asked me to illustrate them. So यहाँ पे जो अब नारायण की बात हो रही है, वो कौन से नारायण की बात हो रही है? आर के नारायण की बात हो रही है या आर के लक्ष्मण की बात हो रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार है ना, तो यहाँ यू हैव टू रीड दिस लाइन। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर आर के नारायण। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, ओके, ऑफ मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स। बहुत हिट ये बुक्स हैं एंड यू शुड रीड देम वंस इन योर लाइफ। सो वो बहुत फेमस था। उसकी जो स्टोरीज़ थी वो द हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है ये, मद्रास में, तो वहाँ पे पब्लिश होती थी। तो वो उसका भाई ये चाहता था आर के लक्ष्मण से कि तुम जो भी मैं स्टोरीज लिखता हूँ तुम उसको इलस्ट्रेट करो, मतलब उसके कैरेक्टर्स ढूंढो, उसको कुछ ड्रॉ करो। तो ऑब्वियसली वो अपने भाई को ही कहेगा क्योंकि वो दोनों सेम जगह पे बॉर्न हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको अपना सराउंडिंग्स अच्छे से पता था, वो रिलेट कर सकते थे। तो उसने बोला कि हाँ मैं करूँगा एंड वो पेंटिंग करना भी सीख गया। ट्रायल एंड एरर मतलब कि जब हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं तो हमें अगर कुछ नहीं आता एंड वी आर ट्राइंग समथिंग, हमें एक बार ट्राई करते, 2 बार ट्राई करते, 3 बार ट्राई करते हैं, 4th टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है। सो दैट इज़ नोन एज ट्रायल एंड एरर, ओके। तो उसको टेक्निक्स भी समझ आ गई थी अपने आप पेंटिंग की क्योंकि उसने ट्राई किया था ड्रॉ करना, पेंट करना। तो ही वॉज़ वेरी ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। उसके बाद उसको एक कार्टूनिस्ट की जॉब मिल गई न्यू दिल्ली में, ओके, सॉरी मिली नहीं थी, ही वॉज ट्राइंग टू गेट दैट जॉब एज अ कार्टूनिस्ट इन न्यू दिल्ली। सो देयर इज़ वन मोर न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो उन्होंने मुझे नहीं रखा, क्यों? उनको लगा कि अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट बन सकूँ। तो फिर उसने बॉम्बे में ट्राई किया, उसको वहाँ मिल गई एंड वहाँ पे उसने एक ये मैगज़ीन्स का नेम है द ब्लिट्स एंड द फ्री प्रेस जर्नल। तो उसके जो कार्टून्स थे इन दोनों में आते थे। तो ही वॉज़ वेरी फेमस। आफ्टर दैट
कार्टून्स के अलावा उसने कॉमिक स्ट्रिप्स भी करी। आप सब ने अगर आपको पता हो तो छोटी छोटी ना बुकलेट्स होती हैं जहाँ पे कार्टून्स बने होती हैं और कुछ वर्डिंग्स लिखी होती हैं स्टोरीज़ की तरह। सो दैट आर नोन एज कॉमिक स्ट्रिप्स। तो वहाँ पे उसने स्टोरीज़ बताई, तंत्री, द मैजिशियन एंड अदर हीरोज़। ठीक है, फिर उसके बाद उसने तो बहुत वो फेमस हो गया, ओके, एंड उसका एक नाम हो गया। फिर उसके बाद जब वो इतना फेमस हो गया, देन ही जॉइंड अ बिग न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, ये हमारा मेन न्यूज़पेपर है कंट्री का, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसको वहाँ पे जॉब मिल गई। सो फॉर 47 ईयर्स ही हैज़ बीन ड्राइंग कार्टून्स फॉर इट्स फ्रंट पेज। तो न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है और ईजिली हर किसी को चांस नहीं मिलता, लेकिन इसको चांस मिला, वो भी इतने बड़े न्यूज़पेपर में। एंड फॉर 47 ईयर्स वो वहाँ पे कार्टून्स ड्रॉ कर रहा था उनके लिए, एंड दैट वाज बीइंग पब्लिश्ड ऑन इट्स फ्रंट पेज। ठीक है, तो जब ये जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जब इसके 150 ईयर्स पूरे हो गए तो एक स्टैम्प बनाई गई सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 150 ईयर्स हो गए थे। तो उस स्टैम्प पे जो था वो उसी का कार्टून था। स्टैम्प पे किसका कार्टून था? आर.के. लक्ष्मण का। तो येस, आई हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड लॉन्ग। उसने कहा कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत लंबी टाइम के लिए मैंने मेहनत करी है, बट आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट यू कैन सी द वर्ल्ड थ्रू पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास। पर कहता मैं ये नहीं भूला कि आप वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को छोटे छोटे कलर्ड ग्लासेस से भी देख सकते हो। Nor have I lost my love for those noisy blackbirds which are always around us, managing to survive. और वो उन बर्ड्स को भी नहीं भूला। यहाँ पे मेनली वो क्रोज की बात कर रहा है, जो कि हमेशा बोलते रहते हैं और वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। I continue to paint crows with as much enjoyment as I did on those long ago days of carefree childhood. तो वो आज भी उसी इन्जॉयमेंट के साथ क्रोज को पेंट करता है जैसे कि वो बचपन में करता था। When each day was exciting and every hour brought adventure। तो बचपन पे क्या था, हर दिन एक्साइटिंग था और हर घंटे में कुछ ना कुछ उसके लिए एडवेंचरस चीज़ वो फेस करता था, इंटरेस्टिंग चीज़ें उसको रियलाइज़ होती थी। तो वो आज इतने सालों बाद, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ ओल्ड ही इज़ नाउ, राइट। सो आज भी वो काम वैसे ही करते जैसे वो बचपन में करता था। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट थ्रू अ कलर्ड ग्लास। अब आपको समझ आ जाएगा कि बुक का चैप्टर का जो हेडिंग है थ्रू अ कलर्ड ग्लास, वो क्या है। थ्रू अ कलर्ड ग्लास मीन्स वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट कलर्ड ग्लास पेन्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।